हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूपीएससी सीसैट 2021 का पेपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चंस इतने टफ नहीं थे कि जितने स्टूडेंट्स सोचते हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी चाहिए सीसैट का पेपर सॉल्व करने के लिए। आज हम वो क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 3:2019 is divided by 10, then what is the remainder? Any number divided by 10, अगर किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट प्लेस ही हमेशा रिमाइंडर रहता है। तो क्वेश्चंस आसान है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिमाइंडर, यूनिट प्लेस। इसके यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा? तो 3 की साइक्लिसिटी हमें मालूम है, 3:1 3, 3:2 9, unit place number 3:3 7 and 3:4 1. Now this can be expressed in the form 2016 into 3:3. एनी नंबर, ये जो भी नंबर है अगर 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। एक कंसेप्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इनटू 3:3 यूनिट प्लेस इज अ 7, hence 7 will be the remainder, hence the option C is the correct choice. हाँ, यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, अगर टाइम ज़्यादा है तो सॉल्व करना, वरना स्किप करना बेहतर रहेगा। फिर भी हम इसे देखते हैं। What is the number is divisible by 7? What is the value of the digit P? तो डोंट, यहाँ पर हम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, नो डाउट, लेकिन ऑप्शनल इस्तेमाल करने से पहले ये जो नंबर है 3798125, इसे पहले 7 से डिवाइड करना चाहिए। इसे 7 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आ रहा है 2, फिर 2 के बाद फिर ए नेक्स्ट कंटिन्यू करना 2P369, यहाँ पर ए ट्रिक अप्लाई करना चाहिए। हाँ, अब P के इन प्लेस 1, ऑप्शन 6, 7 and 9, these are the 4 options. Try one by one, and 6 is the correct choice. From January 1, 2021, the price of a petrol in rupees per liter on mth day of a year is a 80 plus 0.1 m. 80 plus 0.1 m, where m is equal to 2, 3 up to 100, and thereafter remains constant. This is important, remains constant after 100 days. On the other hand, the price of a diesel in rupees per liter on nth day of 2021 is 69 plus 0.15 n for any n. On which date the year 2021 are the prices of these two fuels equal 69 plus 0.15 n. यहाँ पर ऑप्शन की तरफ अगर हम ग्लांस करते हैं तो सारे के सारे ऑप्शन में मंथ क्या है, तो ऑब्वियसली मोर देन 100 डेज यहाँ पर हो गए हैं, इसलिए वी कैन टेक m एज 100. सो 80 प्लस 10, 69 प्लस 0.15 n, it gives the value of n as 140. 140 डेज के बाद प्राइजेस इक्वल हो जाएंगे। हाँ, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, here are the 120 days. 120 days, total 140 days, 140 minus 120, remaining 20 days, और मंथ के मई महीना है, मई का 20 डेज यानी 20th May is the correct answer. A biology class at high school predicted that a local population of animals will double in size every 12 years. हर 12 साल के बाद पॉपुलेशन डबल हो रहा है।
The population at the beginning of the year 2021 was estimated to the 50 animals. It means that at present population 50 है. तो after 12 years के बाद a population double होगा 100, 24 years 200 and so on. If P represent the population after n years, then which one of the following equations represent the model of the class for the population? We have to use the option, and the last option D, it represent the correct. Here we can tally P is equal to 50 into 2 raised to 12 by 2, 12 by 12, 100. Again 50 into 2 raised to 24 by 12, 200 and so on. यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन की तरफ देखना है. In a class of 60 students, in a class 60% of students are from India and 50% of the students are girls. If 30% of the Indian students are girls, then what percentage of foreign students are boys? 60%. Suppose there are 100% students. Dividation is like that. 60% students are from India and 40% students from foreigners. Now, if 30% of the Indian students are girls, again it is subdivided into two parts, that is girls and boy. Also foreign students are divided into two parts, girl and boy. If 30% of the Indian students are girls, 30% of Indian students, 30% of 60, 80. And this statement, 50% of the students are girls, it means out of 100, 50 girls and 50 boys. 50 girls है, 50 boys है. अगर 18 गर्ल्स है, 18 आर गर्ल्स, तो रिमेनिंग 50 माइनस 18, 32 आर गर्ल्स, फॉरेन गर्ल्स. Total number of foreign students are 40, 40 minus 32, 8 boys. Question is that then what percentage of foreign students are boys? Foreign student boys 8 है out of 40, 8 out of 40. Percentage 8 by 40 into 100, 20%. Hence D is the correct answer. A statement followed by conclusion 1, yes, is syllogism का question है, syllogism. Statement, some radios are mobiles. Some radios are mobiles. All mobiles are computers. Yes, then some computers are watches. First conclusion, certainly some radios are watches. Some radios are watches. नहीं, intersect नहीं हो रहा है. रेडियो का यहाँ पर सर्कल है, watches का यहाँ पर है. तो first conclusion does not follow. Certainly some mobiles are watches. Mobile and watches ये भी intersect नहीं हो रहा है. This is also a wrong conclusion. Hence we can say neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows. Again same syllogism question. Some cats are almirahs. Some cats are almirahs. Some almirahs are chairs. Some almirahs are chairs.
all chairs are tables. Conclusion first. Certainly some almirahs are tables. Exactly some almirahs are tables. Follow. First follow हो रहा है. Some cats may not be chairs. यहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस है, may not be. yes definitely possibility है. हम ये भी सही कह सकते हैं कि ये भी सही है. तो both conclusion first and second. This is the possibility case. May not be, word may not बताता है कि ये possibility का केस है. A boy plays with a ball and he drops it from a height of 1.5 meter. Every time the ball hits the ground, every time ball hits the ground, it bounces back to attain a height of 4/5 of the previous height. The ball does not bounce further if previous height is less than 50 centimeter. What is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing? तो बाउंस होने से पहले यहाँ पर 1.5 मीटर यानी 150 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ड्रॉप किया तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हिट करेगा बॉल, फर्स्ट टाइम ग्राउंड को हिट करेगा तो बाउंस होगा. तो एवरी टाइम कितना ऊपर जा रहा है ये 4/5 ऑफ दैट इज 120. ये 120 के हाइट पर जाएगा, फिर सेकंड टाइम यहां पर बाउंस हो जाएगा, ग्राउंड को हिट करेगा, फिर बाउंस. $96 यहां पर करना क्या है, अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है. 96 इंटू 4/5 इंस्टेड ऑफ 96. अगर हम अप्रोक्सीमेट के लिए क्वेश्चन इजी जाएगा, 95 ले सकते हैं फॉर अप्रोक्सीमेशन. यहां पर थर्ड किया 76 को भी अप्रोक्सीमेशन के लिए 75 ले लो. कैलकुलेशन में टाइम कम लगेगा. 60 अगेन 60 का अप्रोक्सीमेशन, 60 इंटू 4/5 48. इसके बाद ये रेस्ट होने वाला है. दिस इज अप्रोक्सीमेट, ये हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है. हाँ, तो ये फर्स्ट टाइम यहां पर हिट होगा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. सी इज द करेक्ट आंसर. Images of consonants of the English alphabet capitals are observed in a mirror. What is the number of images of these which do not look like their original shapes? अगर कैपिटल जो भी नंबर्स है उनके देखा जाए तो मिरर इमेज AHIMOTUVWX एंड Y, इनके मिरर इमेज सेम रहते हैं. लेकिन हमें कॉन्सोनेंट दिया है, तो कॉन्सोनेंट दिया है तो ए कैंसिल हो जाएगा, I, O एंड U, ए रिमेनिंग 7 कॉन्सोनेंट. 7 कॉन्सोनेंट के मिरर इमेज सेम रहेंगे. हमें पूछा है डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप्स. कॉन्सोनेंट है 21 माइनस 7 14 is the correct answer. A bank employee drives 10 kilometer towards south. यहां पर जो टाइम कंज्यूम हो जाता है वो टाइम ज्यादातर टाइम डायग्राम ड्रॉ करने में हो जाता है. तो यहां पर हम वी कैन यूज द शॉर्टकट्स. एक शॉर्टकट यूज करना है. डोंट ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम, सिंपली राइट डाउन the directions and the distance. South 10. Use the shortcut. Rules for shortcut के लिए है same direction एडिशन करो, अपोजिट है सब्सट्रैक्शन करो, अगर सेम नहीं है अपोजिट नहीं है तो पाइथागोरस यूज करो. दिस इज द शॉर्टकट. साउथ 10. साउथ 10.
A bank employee drives 10 kilometers towards south. Then her house turns to her left and drives another 20 east 20. She again turns left and drives 40 north 40. Then he turns her right and drives for another 5 kilometers east 5. And again turns to her right and drives another 30, that is south 30. Okay. सेम डायरेक्शन एडिशन, यहां पर सेम डायरेक्शन है साउथ साउथ, दिस इज साउथ 40 ईस्ट 25 एंड नॉर्थ 40. सेकंड रूल कहता है अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्सट्रैक्शन करो, नॉर्थ 40 एंड साउथ 40 गेट कैंसल, आंसर रिमेनिंग ईस्ट 25, hence the 25 kilometer is the correct answer. Integers are listed from 700 to 1000. In how many integers is the sum of the digits 10? Sum of the digits 10 चाहिए, तो sum कौन सा 10 होगा? 7 plus 3 10 होगा, 8 plus 2 also 10 and 9 plus 1 also 10. तो डिजिट कौन से होंगे? 730, 703, 721, 712, 8 से 820, 802, 811, 9 से स्टार्ट 910, 902. हाउ मेनी? 9. कितने नंबर्स हैं? 9 नंबर्स ऐसे मिल सकते हैं. नेक्स्ट, अ वुमन रन्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स हर नॉर्थ. नॉर्थ 12. Simply write down north 12. Then 6 kilometers towards south. South 6. And then 8 kilometers towards east. East 8. Opposite subtraction, same direction addition. North and south. This is the north 6 and east 8. यहां पर हमें डायरेक्शन तो मिल रहा है, डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट है. दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द ईस्ट. दिस क्वेश्चन इजी है बट ऑप्शन मेक्स इट डिफिकल्ट. ऑप्शंस क्या है? एट एन एंगल लेस देन 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मोर देन और लेस देन. देखो अब यहां पर कंसेप्चुअल क्या है? कंसेप्ट क्या है? जो डिस्टेंस है नॉर्थ की तरफ 6 है. सपोज ये डिस्टेंस है नॉर्थ की तरफ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, नॉर्थ की तरफ ये 6 डिस्टेंस है एंड ईस्ट की तरफ 8 डिस्टेंस है. अगर नॉर्थ की तरफ 6 और ईस्ट की तरफ 6 रहता तो ए एंगल, दिस एंगल विल बी द 45 एंगल. ये एंगल कितना हो जाता? 45 डिग्री. इक्वल है. बट यहां पर ईस्ट 8 है, 8 यानी यहां तक ये 2 है, 6 + 2 8. यानी जो भी एंगल है, हाँ, अब ए एंगल, दिस एंगल, ए वाला एंगल क्या रहेगा? लेस देन 45. ये वाला एंगल हमेशा लेस देन 45 डिग्री रहेगा. तो एंगल लेस देन 45 एंड डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट. B is the correct answer. 7 books PQRSTUV. ये जो क्वेश्चन है यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है. आइदर दिस बिलोंग टू दिस ग्रुप और दिस ग्रुप. तो इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. कोई ग्रिड बनाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करना है देखते हैं. PQRSTUV. हाँ, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. बुक्स ऑफ
old gazetteers with blue covers are. तो ब्लू कवर चाहिए, तो RQT have blue covers, तो RQT रहेंगे, बाकी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी के हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये तीनों ही ऐसे हैं जिनका कवर जो है वो ब्लू कलर का है, नीला है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, सेकंड क्राइटेरिया गैजेटियर्स चाहिए, PR and S आर लॉ रिपोर्ट्स, तो R भी कैंसिल हो जाएगा, Q and T, दिस इज ऑप्शन। Replace the incorrect term by the correct term in the given sequence where the odd terms and even terms follow the same pattern. यहाँ पर odd term and even term same pattern को follow कर रहे हैं, तो पहले हम ये जो odd term का pattern देखते हैं, +4, +6, +8, +10, +12, 2, 4, 10, 18, 28, हाँ, तो यहाँ पर जो 2, 4 है, यहाँ पर +2 पैटर्न है, बाकी +6, +8 तो पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर 2 इज द गलत है, 2 नहीं चाहिए, यहाँ पर कौन सा चाहिए, 0 चाहिए, 0, क्योंकि पैटर्न, ये पैटर्न कैसा है, 3, 7, 13, 21, हाँ, 3 and 7 4 एडिशन है, यहाँ पर 6 ऐड हो रहा है, पर 8 ऐड हो रहा है, 4, 6, 8, हाँ, ये भी 6, 8 सेम फॉलो है, सेम फॉलो हो रहा है, यहाँ से 6, 8, 6, 8, पहला वाला +4 चाहिए, इंस्टेड ऑफ 2, 0 शुड बी देयर। Following is a matrix of a certain entries. The entries follow a certain trend wise, row wise, the missing entry accordingly. ये क्वेश्चंस बहुत आसान था, इजी था। यहाँ पर 7b, 7 + 3 that is equal to 10, 7 + 3 is equal to 10, और रो में ABC प्रेजेंट है, हर रो में ABC है। यहाँ पर 3 + 6, 3 + 6 that is equal to 9, रो में ABC है। यहाँ पर 10A, 13C और क्वेश्चन मार्क है, रो में ABC चाहिए, A है, B की जरूरत है, एंड 3B बिकॉज 10 + 3 13, 3B 10 + 3 13, okay, hence 3B is the correct answer. You are given two identical sequences. ये जो दो identical sequence दे हमें in the rows, what is the entry in the place of a C for the sequence 2? C के जगह पर कौन सा है? अगर हम ये इनका सीक्वेंस देखते हैं तो हमें एक पैटर्न दिखाई देता है। What is the pattern? 8 × 0.5 is equal to 4. 4 × 1.5 is equal to 6. This is the pattern. 6 × 2.5 is equal to 15. 15 × 3.5, 52.5 and so on. यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न, 5 × 0.5 is equal to 2.5, then 2.5 into 1.5, 3.75, and 3.75 into 2.5 is equal to 9.375. So 9.375, option C is the correct choice. A person X from place A and another person Y from place B set out at the same time and walk towards each other. The places are separated by a distance of 15 km. 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, दोनों प्लेस में 15 किलोमीटर डिस्टेंस है। X walks with यूनिफॉर्म स्पीड, X का स्पीड यूनिफॉर्म है, 1.5 किलोमीटर, चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है। Y walks with a uniform speed of 1 km/h in the first hour.
with uniform speed of 1.25 km in the second hour, with uniform speed of 1.5 km per hour in the third hour and so on. इसका मतलब y का जो स्पीड है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा है। तब जो पहला x एंड y, डिस्टेंस तो 15 है, दोनों के बीच डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। पहले इसमें हमें रिलेटिव स्पीड देखना है। x पहले घंटे में 1.5, x तो कांस्टेंट है, y 1 है, दिस इज फॉर फर्स्ट आवर। सेकेंड आवर में x 1.5, y 1.25, 0.25 से y बढ़ रहा है, y इंक्रीज हो रहा है 0.25 से। x कांस्टेंट, तीसरा घंटा 1.5, 1.5, फोर्थ आवर 1.5, 1.75 एंड फिफ्थ आवर 1.52। अगर हम देखते हैं इनका पूरा एडिशन करते हैं तो ये 7.55 आवर्स में, टोटल आवर्स 5 आवर्स। हाँ, और y भी 7.5, 7.5 प्लस 7.5, 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। यानी जो भी एक घंटे में 1.5 प्लस 1 अनदर आवर्स में इतना, तो दे टेक 5 आवर्स टू मीट, ये सही है, करेक्ट है। अनदर दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी, सही है, मिडवे बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि x ने भी 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और y ने भी सेम डिस्टेंस कवर किया है 7.5, hence second is also correct. A student appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. His marks in these papers are in the proportion of 5:6:7:8:9:10. Overall, he scored 60%. How many number of papers did he score less than 60% of the maximum marks? अब हमें इनका एवरेज है, एवरेज मार्क्स कितने हैं? 60%, एवरेज मार्क्स 60, तो इनका एवरेज निकालो, 5x प्लस 6x प्लस 7x, इनका एवरेज कितना आ गया? 45x डिवाइडेड बाय इनका एडिशन सम आ गया 45x, टोटल है 6, इज इक्वल टू 60%। आसान है, 3/5, x इज इक्वल टू 3/5 into 6/45, it becomes 2/25। ओके, अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो 5x, तो 5x का परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो 5 into 2/25 into 100, ओके, 40, यानी 2 into 4, 8 है, 8 ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया, तो हम डायरेक्टली परसेंटेज निकालते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके। ये 40% है, ये 48% है, ये 56% है, ये 64, 72 एंड 80% है। सिंपल, आसान बात है। हमें क्या पूछा है? लेस देन 60%, लेस देन 60% कौन सा है? तीन सब्जेक्ट है लेस देन 60%। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम 6x करेंगे, x का तो वैल्यू कांस्टेंट है 2/25, अब परसेंटेज के लिए हम 100 लेंगे, तो इफ 2 into 4, 8, हमेशा 8 तो फैक्टर आ जाएगा, इसलिए 8 से हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है। In a group of 120 persons, 80 are Indians and the rest are foreigners. 120 में 80 Indians है, 80 Indians and remaining 40 foreigners. 70% in the group can speak English. Okay, 70% ग्रुप में इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं अगर हम बाइफर्गेशन करें इंडियन और फॉरेनर से। सपोज वी एज्यूम मैक्सिमम 40 फॉरेनर्स कैन स्पीक इंग्लिश, मैक्सिमम, मैक्स वैल्यू, एंड मिनिमम 30 इंडियन कैन स्पीक इंग्लिश, और we can assume none foreigner can speak English and all Indians can speak English. यानी इंडियन का जो
नंबर है तो मिनिमम 30 है, मैक्सिमम 70, then we can say 30 or more. The number of Indians who can speak English, this is the minimum 30 and maximum 70. तो हम कह सकते हैं कि 30 or more. Consider all 3-digit numbers without repetition obtained using 3 non-zero digits which are multiples of 3. Let S be there, some multiples of 3 and non-repeated. We assume 369, 396, 639, 693, 936 and 963. इनका एडिशन 6993. हर एक का एडिशन 36 होगा, 9918, 639, 639, 9999, 36. ओके, हमें S is always divisible by 74, S is always divisible by 9. ये जो सम है S डिविजिबल बाय है कि नहीं, ये चेकआउट करना है. तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे. अगर फैक्टर में 9 एंड 74 फैक्टर मिलते हैं तो डिविजिबल है, अगर मिलते हैं नहीं है तो नहीं है. सिंपल. 3996 इसके फैक्टर निकालते हैं हम, 3 से डिवीजन करते हैं. 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, 3 जा 3 2 जा, अगेन डिविजिबल बाय 3. 4 4 4 डिविजिबल बाय 2, 2 2 2 डिविजिबल बाय 2, 1 1 1 डिविजिबल बाय 3, 37. हाँ, 9 फैक्टर मिल रहा है, यस मिल रहा है. 3 3 जा 9 डिविजिबल बाय 9 है. 74 फैक्टर मिल रहा है, यस. 37 into 2, yes is always divisible by 74. Hence both first and second is the correct answer. There are two classes A and B having 25 and 30 students respectively. In class A, the highest, class A में 25 students है, class B में 30 students है. ओके, क्लास ए में हाईएस्ट स्टूडेंट, हाईएस्ट मार्क कितने हैं 21 एंड लोएस्ट स्कोर 17 है. क्लास बी में हाईएस्ट स्कोर 30 है, लोएस्ट स्कोर 22 है. 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी. 4 स्टूडेंट है शिफ्ट किए गए हैं क्लास ए से क्लास बी को. 4 स्टूडेंट अगर शिफ्ट किया जाए तो क्या होगा, देखो यहां पर तो आइदर टॉप के 4 स्टूडेंट चले जाए या बॉटम के 4 स्टूडेंट्स. बी का तो एवरेज डिक्रीज ही होने वाला है क्योंकि बी में तो ज्यादा मार्क वाले स्टूडेंट है. तो हिंस द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज. ये तो सही है. अनदर द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज. हम कह नहीं सकते विच 4 स्टूडेंट. अगर बॉटम के 4 स्टूडेंट चले जाए, बॉटम के 4 स्टूडेंट चले जाए तो इंक्रीज होगा. अगर टॉप के 4 स्टूडेंट अगर शिफ्ट हो जाए तो ए का एवरेज डिक्रीज होगा. तो डेफिनेट हम कह नहीं सकते. हिंस सेकंड इज द रॉन्ग, फर्स्ट ओनली इज द करेक्ट चॉइस. कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स एंड अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन डीएस का है, डेटा सफिशिएंसी का. जब भी हमें डीएस का क्वेश्चन दिखाई देता है तब हम पहले उसका क्वेश्चंस देखते हैं. What is Seema's rank from the top in the class of 40 students? When we consider the statement 1 alone, Priya is a 4 rank below the Seema. Suppose this side is the top and this side is the bottom. Priya is a 4 rank below the Seema. Seema का खुद का रैंक है 1. 3 प्रिया का खुद का रैंक 1. Priya is a 4 rank below Seema and 31st from the bottom. Priya is a 31st from the bottom. यानी 30, 33, 4, 5
यहाँ पर 5 स्टूडेंट है, बिकॉज ऑल क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो सीमा का रैंक टॉप से कितना, 5 + 1 6। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। नाउ थिंक अबाउट द स्टेटमेंट 2, Ina is 2 ranks above Seema. This is the Ina's 1 and Seema का खुद का एक रैंक। Ina is 2 rank above Seema and is 37th from the bottom. 37th, Ina is 37th from the bottom. यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स है, 3, 4, 5, 6. From this also we can say that Seema's rank is a 6th rank from the top. Hence, statement 2 alone is also sufficient for the answer. Hence, we can say either statement 1 alone or statement 2 alone is sufficient to answer the questions. Again, data sufficiency question है ये. Each of A and D is heavier than each of B, E, F, but none of them is heaviest. Question है, who is the heaviest among A, B, C, D, E? A, B, C, D, E में ज़्यादा heaviest कौन है? The first statement alone says that each of A and D is heavier than A and D is heavier than B, E, F. B, E, F. But none of them is heaviest. एक क्या बताता है कि C and the relation between C and A and D is not known. The relation between C and D में क्या relation हो सकता है? C can be greater than or equal to A and D. C can be greater than or equal to A and D. तो definitely heaviest कौन है? ये हम कह नहीं सकते. If we consider statement 2, A is heavier than D. A is heavier than D, but lighter than C, yes. So we can say both statements are necessary. Both statement 1 and statement 2 are required to answer the given question. In the English alphabet, the first 4 letters are written in opposite order and the next 4 letters are written in the opposite order and so on. क्या किया है, जो A B C D है, A B C D रिटर्न में opposite order D C B A ऐसे लिखे हैं. तो पहले 4, उसके बाद 4, उसके बाद 4, 4, 4, 4, 12 लेटर तो हो गए, क्योंकि हमें 13th लेटर का पूछा है. यस, तो L तक खत्म हो गए, A to L 12 लेटर. L के बाद M N O P Q R S T. अगर ये रिवर्स ऑर्डर में तो P O N M T S R Q. Question is that which will be the 4th letter to the right of 13th letter? There are, यहाँ तक तो 12 हो गए. This is the P is the 13th letter. अब 4th letter 1 2 3 4 T is the answer. Consider the following tables. Who is the fastest run scorer in the test match? यहाँ पर ये तो क्वेश्चंस कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ ग्लांस करना है, देखना है और आंसर देना है. कैसे? अगर दोनों इनिंग के रन और जो बॉल फेस है ऐड किए जाए तो ए का कितना, ए ने कितना टोटल रन स्कोर, ए का कितना हुआ 75 रन स्कोर किए एंड टोटल बॉल फेस हो गए 175. बी ने कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. बी ने कितने रन स्कोर किए हैं? बी ने 55 रन स्कोर किए हैं और उसने नंबर ऑफ बॉल फेस किए हैं 97. सी ने 35 रन स्कोर किए हैं और नंबर ऑफ बॉल फेस किए हैं 125.
पूरा एडिशन, दोनों इनिंग का एडिशन करो। डी ने 25 रन स्कोर किए हैं और 105 बॉल में। हाँ, तब हमें देखते ही पता चलता है कि बी इज द फास्टर रन स्कोरर, क्योंकि उसने 97 बॉल्स में 55 रन स्कोर किए हैं। बी इज द फास्टर स्कोरर, हिंस आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। Half of the villagers of a certain village have their own houses. Half. 1/5 of the villagers cultivate paddy. ये जो फ्रैक्शन के क्वेश्चंस रहते हैं, ये कैसे सॉल्व करना, एक ट्रिक बताता हूं। 1/3 of the villagers are literate. 4/5 of the villagers under 25 years of age. Which of the following statements is certainly correct? यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो विलेजर्स है सर्टेन विलेज में मेंशन नहीं किए हैं, तो हमें एज्यूम करना है टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स। वो एज्यूम कैसे करेंगे? हाफ, जो भी फ्रैक्शन है ले लो, हाफ, उसके बाद 1/5, उसके बाद 1/3 एंड 4/5। अब जो भी डिनोमिनेटर है, सभी का एलसीएम निकालो। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। डिनोमिनेटर है 253, ये तो 5 रिपीट आ रहा है। 253, इनका एलसीएम ले लो 30, तो एज्यूम करो 30 इज द टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स। अब तो बात आसान हो गई। हाफ ऑफ द विलेजर्स ओन हाउस, यानी 15 लोगों के पास खुद का हाउस है। 1/5 ऑफ द विलेजर्स पैडी, तो 6 क्या करते हैं? पैडी कल्टीवेट करते हैं। 1/3 विलेजर्स आर लिटरेट, 10 लिटरेट है। एंड 4/5 विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स है, यानी 25 विलेजर्स ये अंडर 25 ईयर्स एज है। फर्स्ट ऑप्शन, ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेस आर लिटरेट। ऑल द विलेजर्स ये कह नहीं सकते डेफिनेटली। सर्टनली करेक्ट। Which one of the following statement is a certainly correct? यहां पर वर्ड है certainly होना चाहिए, कह नहीं सकते। सेकंड, some villagers under 25 years of age are literate. Yes, certainly, because 10 लोग हमें लिटरेट चाहिए और अंडर 25 ईयर्स एज है 24 है आउट ऑफ 30, यानी हम अगर 6 लोग अदर भी इसमें ले ले कैटेगरी हाउस वाले, तो मिनिमम 4 स्टूडेंट, तो 4 विलेजर्स तो अंडर 25 ईयर्स के एज के चाहिए ही चाहिए। इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। अगेन डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है, व्हाट डे इज द 14th फ्रॉम द गिवन मंथ? डेटा सफिशिएंसी, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज अ वेंसडे। तो लास्ट डे मंथ वेंसडे है, इससे हम 14th डे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मंथ हमें मालूम नहीं है। मंथ जनवरी है या फरवरी है या लीप ईयर वाला फरवरी है या कौन सा मंथ है, हम नहीं काउंट कर सकते। देन द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज 17th day. Yes, this is sufficient. सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे, सेकंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे 17, उसके पहले 16, 15th and the 14th. We can find out the 14th day. Hence, statement 2 alone is sufficient to given the answer. Which day is the 10th October 2027? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। जो भी जनरल, जो लीप ईयर, जनरली लीप ईयर +1, ये जो फॉर्मेट वाले ईयर्स रहते हैं उनका कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट होता है, और जो लीप +2 एंड लीप +3 ये फॉर्मेट वाले जो ईयर्स है उनका कैलेंडर जनरली 11 साल के बाद रिपीट होता है। तो ये तो एग्जाम का डेट था 10 अक्टूबर 2021। 2021 ये लीप +1 ईयर के फॉर्मेट में आता है, तो इसका कैलेंडर 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर के बाद रिपीट होगा, तो 2021
27 को एक कैलेंडर रिपीट होगा और 10 अक्टूबर को कैलेंडर सेम है तो डे भी सेम रहेगा, संडे। सिलोजिज्म का सम ग्रीन्स आर ब्लूज, some blues are black, some greens are blue, some blues are black. First conclusion, some greens are black, wrong. Second conclusion, no green is a black, कह नहीं सकते, intersect हो सकता है, wrong. Negative statement नहीं है, यहाँ पर कोई भी negative statement नहीं है. Third, all greens are black, wrong. Fourth, all blacks are green, wrong. Neither first nor second nor three nor four, कोई भी गलत है, सभी गलत है. हाँ, यहां पर अगर एक ऑप्शन आ सकता था, अगर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड में ईदर फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट, इसका राइट आंसर हो सकता था, लेकिन वो आंसर यहां पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वी हैव टू चूज डी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस? हाँ, सीक्वेंस क्या है? 2 into 3 plus 1 is equal to 7. 7 into 3 plus 1 is equal to 22. In the same way, 202 into 3 plus 1, 607. C is the correct answer. Jay and Vijay spent an equal amount of money to buy some pens and special pencils of the same quality from the same store. If Jay bought 3 pens, suppose pen की वैल्यू है x रुपीज एंड दैट ऑफ पेंसिल इज y रुपीज. पेंसिल की हम एज्यूम करेंगे वैल्यू है y रुपीज. इफ Jay bought 3 pens, that is a 3x plus 5 pencils 5y and this value is equal है, इक्वल है कौन सा? 2 pens 2x plus 7 pencil 7y. Hence we can get x is equal to 2y. Is the equation. First, a pencil cost more than a pen, wrong. The price of a pencil is equal to that of a pen, wrong. Third one, the price of a pen is 2 times the price of a pencil, सही है. C is the correct answer. P scored 40 marks more than Q in an exam. If Q scored 10% less marks than the P, how much did Q score? Suppose P scored 100% mark, then Q scored 90% mark, 10% मार्क लेस किए हैं. हाँ, तो हम कह सकते हैं कि 10% मीन्स 40 मार्क. तो 10% मीन्स 40 मार्क, क्यू ने स्कोर किए हैं 90%. व्हाट अबाउट द 90%? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 90 into 40 divided by 10, 360 is the answer. A person P asked one of his friends as to how much money he had. X replied, XYZ इनके पास जो मनी है. What replied, if Y gives me rupees 40, then Y will have half of as much as Z. तो Y के पास, तो अब Y minus 40 और ये X को देगा, तो X के पास अमाउंट होगा X plus 40. इन दिस कंडीशन, तो पहले कंडीशन में Y के पास Z के हाफ अमाउंट होगा, तो इससे हम कह सकते हैं Z इज इक्वल टू 2Y माइनस 80. दूसरा कंडीशन क्या है? इफ
ओके Okay. A person P asked one of his three friends X as how much money he had. Three friends X, Y, Z. X replied, if Y gives me rupees 40, if Y gives me rupees 40, तो Y के पास तो Y minus 40 रुपीज़ रहेंगे, X के पास तो 40 रुपये ज़्यादा आ जाएंगे और Z के पास तो अमाउंट Z ही होगा. Then Y will have half as much as Z. तो इससे हम निकाल सकते हैं Z is equal to 2Y minus 80. हाँ, बट इफ Z gives me rupees 40, अगर ऐसा नहीं हुआ, Z ने 40 रुपीज़ दिए किससे, X को, तो सभी के पास इक्वल अमाउंट रहेगा, यानी Y is equal to Z minus 40. Put this value of Y into the first equation. We get equation as Z is equal to 2Z minus 80 minus 80. Z is equal to 160. तो Z के पास 160 रुपीज़ है. अब Y is equal to Z minus 40. Y is equal to 160 minus 40. Y के पास 120 रुपीज़ है. अब Z minus 40 is equal to X plus 40. Z के पास तो 160 रुपीज़ है. 160 minus 40 is equal to X plus 40. तो इससे X के पास 80 रुपीज़ है, 80. टोटल, तो टोटल कितना हो गया, 80 plus 120 plus 160, 360 is the correct answer. In a code language, mathematics is written as LBSINZUHDR. How chemistry is written as. अब देखते हैं M पैटर्न कैसा है. M का L AB. तो पहले -1 है, उसके बाद +1 जो भी अल्फ़ाबेट है, ML, M13, L12 -1, A1 B2 +1, उसके बाद T S -1, T20 S19 -1. तो -1 +1 ये पैटर्न है. तो केमिस्ट्री की तरफ भी हमें वही पैटर्न फॉलो करना है. तो -1 है तो उसका स्टार्टिंग B से होगा. तो B से है तो ऑप्शन A एंड डी आर कैंसल. उसके बाद देखते हैं BID सेम है. तो फोर्थ लेटर N और L है, तो हमें फोर्थ लेटर के, सिर्फ फोर्थ लेटर के ऊपर फोकस करो. -1 +1 -1 +1, तो +1 M से N रहेगा, तो N यहाँ तक है. B इज द करेक्ट आंसर, C इज द रॉन्ग. इसमें पूरा डिटेल केमिस्ट्री के लिए कौन सा वर्ड है, ये पूरा डिकोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं. ऑप्शन की तरफ देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं. एट
Which of the following times do hour hand and the minute hand of a clock make an angle of 180 degree with each other? देखो 180 डिग्री के लिए 12, 6, 1, 2, 3, 7, हाँ जो है, लेकिन हम 7, 5 नहीं कह सकते, बिकॉज वाई, बिकॉज जो भी ये जो आवर हैंड है, आवर हैंड अगर 1 मिनट हो जाता है, 1 मिनट हो जाता है तो हाफ डिग्री से आवर हैंड मूव हो जाता है। हाँ, तब जब हाफ डिग्री, हाँ हाफ डिग्री के लिए चाहिए, तब ये 5 मिनट्स का ज़्यादा 5 इंटू हाफ 2.5, यस 2.5 डिग्री मोर ज़्यादा चला जाएगा। तो आंसर इज बिटवीन 7.05 and 7.10 hours. In an objective type test of 90 questions, 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks deducted for every wrong answer. यानी अगर एक रॉन्ग आंसर हो गया तो कितने मार्क डिडक्ट होते हैं? फॉर 1 रॉन्ग आंसर 5 मार्क्स तो चले जाते हैं और 2 की पेनल्टी आ जाती है, तो 7 मार्क्स, 7 मार्क क्या हो जाता है? लेस हो जाते हैं, 7 मार्क लेस हो जाता है जब एक आंसर गलत हो जाता है। तो अगर हमने पूरे अगर उसके सही जवाब आ जाते तो उसे 90 इंटू 5 450 मार्क्स उसे प्राप्त हो जाते, लेकिन उसे रियल में 387 मार्क्स मिले हैं। तो कितने कम मार्क्स मिले हैं? 63 मार्क्स उसे कम मिले हैं। तो हम कह सकते हैं जब 7 मार्क लेस हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन रॉन्ग आ जाता है। अब 63 मार्क लेस है तो व्हाट? 63 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 7, 9। ओके, और यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए 60/55, ये जो रिलेटिव स्पीड का फैक्टर है हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 705 इंटू 60/55, दिस इज द करेक्ट टाइम। Consider the following addition problem: 3p plus 4p plus pp plus pp is equal to rq2, where pq and r are different digit. तो यहाँ पर हमें 3p, 4p, pp and pp, तो rq2 है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 2 है, यानी अगर जो भी नंबर है उसका 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो यूनिट प्लेस में 2 चाहिए। 1 इंटू, हाँ तब देखते हैं हम 1 इंटू 4 नहीं हो सकता, 1 इंटू 4 4 है, ये क्यों? ठीक है, 1 इंटू 2, 2 2 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 4, हाँ 3 इंटू 4 2 2 चाहिए, 3 इंटू 5 नहीं हो सकता, हाँ 3 इंटू 8 भी हो सकता है, सॉरी 8 इंटू 4 भी हो सकता है, 8 इंटू 4 32, हाँ 8 यूनिट डिजिट 2 हो सकता है। यानी 2 नंबर ऐसे हैं जो यूनिट प्लेस में 4 बार एडिशन किए जाए तो उसका 2 आएगा। ओके, 3 3 3 3, 12 12 का 2, सिमिलरली 8 8 8 8 2। तब हम निकाल सकते हैं, दैट इज 33 43 33 33 2 1 10 13 142 88, सॉरी 30 38 48 88 88 262
हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम। तो ये दोनों पॉसिबल सम का अरिथमेटिक मीन निकालना है, 142 एंड 262, 404 का सम अरिथमेटिक मीन, दो टर्म्स है तो डिवाइडेड बाय 2, 404 डिवाइडेड बाय 2, 202 is the correct answer. Consider the following multiplication problem. PQ into 3 is equal to RQQ. PQ into 3 is equal to RQQ. हमें भी यहीं पर भी सेम चाहिए, अगर किसी नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं Q 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हाँ Q में भी 5, बिकॉज यहाँ पर 5 है तो मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 3 जा 15, 5 ही आएगा। हाँ, तो एक कैरी फॉरवर्ड होता है, तो इसके मतलब हमें P ऐसा नंबर चाहिए जिसे 3 से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट में 4 आएगा, तो P है 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 प्लस कैरी फॉरवर्ड 1, 25। तो इससे हमें मालूम पड़ेगा Q इज इक्वल टू 5 है, P इज इक्वल टू 8 है एंड R इज इक्वल टू 2 है। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस R? P प्लस R 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 इज द करेक्ट आंसर। There are 3 points PQ and R on a straight line such that PQ is to QR is equal to 3 is to 5. देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, PQR ऐसा हो सकता है, PQ is to QR 3 is to 5, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरा पॉसिबिलिटी Q स्टार्ट में भी आ सकता है, यहाँ पर Q हो सकता है, यहाँ पर P हो सकता है, यहाँ पर R, देन PQ तो 3 है, QR को 5 है, यानी दिस इज 2, बस। तो देयर आर 2 वैल्यूज, किसके वैल्यू निकालने हैं? PQ इज टू PR। हाँ, PQ यहाँ पर 3 है, PR 8 है, यहाँ पर 1 वैल्यू 3 is to 8, यहाँ पर PQ 3 है और PR कितना है? 2 है, 3 is to 2, here is the another value. Means how many? There are answer 2 is the correct choice. On a chessboard, how many different ways can 6 consecutive squares can be chosen on the diagonals along a straight path? देखो, जब भी चेस बोर्ड है तो चेस बोर्ड 8 by 8 यानी 8 जो स्क्वायर्स है वो डायगोनली 8 स्क्वायर्स रहेंगे हमेशा, 8। अगर डायगोनली 8 है 1 से लेकर 8, 1 से लेकर 8 तक, तो हम 1 2 3 4 5 6 सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैसे चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। वी कैन सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6 और 2 3 4 5 6 7 और 3 4 5 6 7 8, दीज इन 3 वे। देखो, इस डायगोनल के लिए हम 3 वे एंड for another this diagonal again 3 plus 3 6 ways. In the series, ये जो सीरीज है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये सीरीज 4th इज द करेक्ट आंसर। हम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ABA AAB ABA AAB, ये जो सीरीज है वो अल्टरनेट सीरीज आ रहा है, दिस इज द अल्टरनेट सीरीज, हिंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। यूजिंग 2 2 3 3 3 एज अ डिजिट्स, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर दैन 30,000 कैन बी फॉर्म? देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस है, टेंस है, 100 प्लेस 100 1000 एंड 10,000। ये जो 10,000 है यहाँ पर तो 3 ही आने वाला है, 3 आने वाला है। अब बचे नंबर 4, एक 3 तो गया, 2 2 3 3। अब 2 2 3 3
ये नंबर कितना है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, 3 भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, 24 divided by 4, 6 numbers, such 6 numbers are possible, can be formed. Consider the following statement, the sum of 5 consecutive integers can be 100, yes, sum of 5 consecutive numbers can be 100, 100 divided by 5 is equal to 20, hence 20 is the middle number, so the numbers can be 20, 21, 22, 19 and the 18. These are the 5 numbers. Again, the product of 3 consecutive natural numbers can be equal to their sum, yes, 1, 2, 3, 1 plus 2 plus 3, means both 1 and 2 can be the answer, sorry, correct answer. A cubical vessel of a side 1 meter is filled with completely with water. How many side 1 meter, how many milliliters? We know 1 meter cube is equal to 10 to the power 6 milliliters cube. Hence 4 is the correct answer. There are 6 persons arranged in a row. Another person has to shake hands with the 3 of them, so that he should not shake hands with the 2 consecutive person. 2 consecutive person को shake hand नहीं करना है. तो 6 persons है A, B, C, D, E and F. अनदर पर्सन है, दूसरा पर्सन आ गया, वो A को शेक हैंड कर सकता है, B को नहीं, C को कर सकता है, D को नहीं, E कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी. दूसरा A को कर सकता है, C, E को नहीं, F. उसके बाद B को कर सकता है, D कर सकता है, F कर सकता है. उसके बाद F कर सकता है, D कर सकता है and A कर सकता है. These are the four possibilities. 4. B is the correct answer. An amount of money was distributed among A, B, C in the ratio P is to Q is to R. Consider the following statements. A gets maximum share if P is greater than. देखो अभी A, B, C कौन सा रेशियो है? P is to Q is to R रेशियो है. A gets maximum share if P is greater than Q plus R. सही है, करेक्ट है. सपोज वी एज्यूम इसका शेयर 1 है, इसका शेयर 1 है, इसका 2 है, तो P is greater, 8 is greater than 1 plus 2. सही है. एनी नंबर. C gets minimum share if R is less than P plus Q. कह नहीं सकते R is less than P plus Q. 8 plus 1 से R less है, पर हमेशा R को ही less मिलेगा. This is not definitely true. Hence second we can't say. तो first only is the correct answer. यहाँ पर minimum तो Q को मिल रहा है. A pie diagram shows the percentage distribution of a proteins, water and other dry elements in the human body. Given that proteins correspond to 16% and water corresponds to 17%, if both proteins and the other dry elements correspond to P%, तो इसका मतलब P% हो गया. Remaining 14, 16 plus 14, 16 plus 14 is equal to 30%. ये P हो गया. हमें मालूम है 100% means 360 degree. What about 30%? 30 into 360 divided by 100, 108 is the correct answer. Joseph visits the club on every 5th day, Harsh visit on every 24th day, while Sumit visit on every 9th day. LCM लेना है हमें. LCM of a 5th, 5 day, 24th and 9, इनका LCM आ गया, निकालते हैं. 5 जा, 3 8 जा, 3 3 जा, 40 into 9, 360. 360 is LCM. इसका मतलब 360 डेज बाद सब मिलेंगे. अब एक वीक होता है 7 days a week. 360 से उसे डिवाइड करो. 7 5 जा 35,
7 1 जा 7, रिमेनिंग 3 डेज। हाँ, तो हमें करना क्या है, 3 डेज आगे जाना है, किसके, संडे को। संडे को स्किप करो, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। वेंसडे इज द करेक्ट आंसर। ऑन विच डे दे विल ऑल थ्री मीट अगेन, वेंसडे। The difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the positions of the digits is 54. Suppose the number is x and y, hence a number form होगा 10x plus y, क्योंकि 10 x ये यूनिट डिजिट के प्लेस पर है। अगर इंटरचेंज किया जाए तो yx, तो 10y plus x। अब इनका डिफरेंस जो भी है, तो डिफरेंस, यस, इनका गिवन दैट द डिफरेंस इज 54। डिफरेंस कितना है, 54 है। तो डिफरेंस 54 है, तो हम कह सकते हैं 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 54, x माइनस y इज इक्वल टू 6। Hence, the second conclusion, the difference between the two digits of the number can be determined. Yes. Another, only, देखो यहाँ पर, the sum of the two digits of the number can be determined only if the product of the two digits, जरूरी नहीं है only। देखो यहाँ पर 6 है, तो 93, 82, 71, 60, 39, 28, 17, these numbers can be found। तो जरूरी नहीं कि हमेशा दिया जाए, तो B इज द करेक्ट आंसर। X said to Y at the time of your birth, okay, X and Y, एज कब है, at the time of birth and the present। Suppose present age of Y is A and at the time of birth y का एज तो 0 रहेगा। X said to Y at the time of your birth I was twice as old you are at present। at present A है, at the time of birth 2A था। आज Y का एज A से इंक्रीज हुआ, X का भी A से इंक्रीज होगा, तो आज X का एज होगा 3A। Today the present of age is X is 42, it means 3A is equal to 42। A का एज आज होगा 14। First, 8 years ago the age of X was 5 times that of Y। देखते हैं सही है क्या नहीं। 8 years ago ये तो 6 रहेगा, 34 नहीं है, गलत है। After 14 years the age of X should be 2 times the age of Y। After 14 years, 14 years के बाद A होगा 28 एंड 14 years के बाद A होगा 56। सही है, 2 टाइम्स है, सेकंड इज द करेक्ट है, 2 only। If the price of an article is decreased by 20% and the new price is increased by 25%, then what is the net change in the price? Suppose price 100 rupees था, पहले 20% से डिक्रीज किया गया, 20% से डिक्रीज किया तो प्राइस हो गया 80। उसके बाद 25% से इंक्रीज है, तो 25% ऑफ व्हाट, 25% ऑफ 80, 80 के 25% से इंक्रीज हो गया है, यानी 20 से इंक्रीज हो गया, तो अगेन प्राइस विल बिकम 100। पहले 100 था, बाद में 100 है, तो व्हाट इज द चेंज, चेंज इज नो, 0%, 0% इज द करेक्ट आंसर। When a certain number is multiplied by 7, the product entirely comprises of only 1111। What is the smallest such number? ये तो बहुत आसान है, इसे क्या करना है, हमें 111 लिखना है, 6 times 11, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर है, 5 नंबर है, 1 2 1 2, तो इसे 7 से डिवाइड करना है, 15873 is the correct answer। A man completes 7 by 8 of a job in 21 days. How many more days will it take him to finish the job if quantum of work is further increased by the 50%? देखो, अभी 7 by 8 जॉब कंप्लीट करने में उसे 21 डेज आते हैं, तो पूरा जॉब कंप्लीट करने में, यानी रिमेनिंग 1 by 8 बी जॉब उसे कंप्लीट करना है। अगर पूरा जॉब कंप्लीट करना है तो डेज ज़्यादा लगेंगे, कितने लगेंगे डेज, 24।
यानी 24 डेज में पूरा जॉब खत्म हो जाएगा। अब क्या किया है, 50% क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। तो फर्दर 50% के लिए और 12 दिन लगेंगे, और ये पहले वाला जॉब कंप्लीट करने के लिए 3 डेज एंड फर्दर 50% के लिए 12, यानी 12 + 3 15, 15 दिन लगेंगे। मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। इसे हम ऐसे ही कर सकते हैं, 7/8 जॉब के लिए 21 डेज, 1 जॉब के लिए व्हाट अबाउट व्हाट 1 × 21 डिवाइडेड बाय 7/8 यानी 24 डेज। अब एक जॉब के लिए 24, हाफ जॉब के लिए व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाफ × 24 12 डेज। ये वाले 12 हाफ के लिए और ये वाले 3, 12 + 3 15 days is the correct answer. Okay, thank you dear students.